Welcome to this fourth lecture of the series on small towns under the aegis of the Abohar History Project. Today we are joined by Professor Syed Ali Nadeem Rezavi, who is a professor of history at Aligarh Muslim University. I know Professor Nadeem for a long time now, almost more than half a decade now. My interaction with him actually started through this conference that we had organized in Shīʿah in 2015. And the conference explored some of the dimensions of religion and society. And he was very kind to join that conference. And since then, we have been in touch. His actually most important, significant work has been this publication from Oxford University Press, which is titled Fathpur Sikri Revisited. And that has actually received a lot of honor, a lot of praise, wherein he explores the capital of the Mughal India very deeply and revisits some of the received debates about the capital city. He's a medieval historian by training. And though his interest actually intersects with museology and archaeology, he has been central to the establishment and also the governance of the Musa Dakri Museum at AMU. He's also been very importantly associated with lecture series that he had started organizing under the aegis of Aligarh Society of History and Archaeology. And besides that, very active with a lot of conferences, and particularly also the Indian History Congress, which many of you would know is one of the very large organization of professional historians in India, which has been actually in place, and Professor Nadeem may correct me if I'm wrong, from pre-partition times. Indian History Congress has been a very important professional platform. Without wasting much time, because we know Nadeem has a lot of publications and honor in his kitty. So I may not be able to finish them within a short period of time, but I think with this short introduction, I would invite him to give his lecture, share his thoughts on this interesting aspect of a kasbah in the eastern UP. So over to you, Professor Nadeem. I think you can take around 40 to 45 minutes, and then we can have a short round of introduction, a question-answer session. Would that be all right? Yeah, I think absolutely fine. Over to you now. Thank you. Well, let me first of all thank all the members of the Abohar History Project, who are the organizers of this series on small town histories, and especially to Dr. Yogesh Stehi for inviting me over to deliver this talk on a small kasbah in eastern Uttar Pradesh. The name of this place is Haswa or Hanswa. It's since the last decade or so, it's pronounced as Haswa when it is written in Hindi. But otherwise, if you look at the sources and the people of that place, they would always call it as Hanswa with a na in between. And that place, interests me because I consider that place to be my watan, the place where my family belongs to. My talk today, mostly offhand, because no proper dedicated history of this place has been attempted so far. It's basically a personal journey woven together with certain historical sources which I was able to get hands on. Sources like Ain-e Akbari of Abul Fazl,
dating back to Akbar's period, which is a sort of a gazetteer for the reign of Akbar, noting down everything concerned with the empire, from armaments to mines and wages to soldiers. So there is a strong section where the revenue figures of each and every suba, the towns and the qasbas and everything is mentioned out there. So one of the basic sources which gave us some information about this place is Abul Fazl. Then, of course, during the colonial period, we have those excellent district gazetteers, especially the district gazetteer of Fathpur, district Fathpur, prepared by Neville's gazetteer. Then we have certain family documents which are in my possession. And then, of course, some word of mouth traditions which are narrated amongst those who belong to that place. Now, Haswa or Hanswa is a large rural settlement today counted as a village situated off the well-known National Highway number 2, which is popularly known as the GT Road. And it is, as I said, situated in district Fathpur in Uttar Pradesh, eastern Uttar Pradesh. Now, as one leaves the town of Fathpur and proceed on the GT road towards Allahabad at around a distance of 12 kilometers, one has to get down from the highway and follow a single-lane tarred road for around 1.5 kilometers to reach Haswa. Once connected to the district headquarters, only through a horse carriage, a tonga or a nikka, now it can be approached by frequent motorized or battery-operated scooter rickshaws, which in the local parlance are known as tirris. A few rickety buses are also available. You can take those buses, private buses, if you can take the risk of traveling by them. There is no regular service, but those who can't afford the ride on that scooter rickshaw can always take a bus. A basic primary school, a government dispensary, a post office, as well as one major bank, the branch of a major bank, Bank of Baroda. It's a very prominent building within that township, are all located in this settlement of Haswa. Now, this village, I call it a village at the moment because it is a village, recorded as a village in the present documents, till 19th century was considered a qasba, a mufassil town, near the larger Shīʿah, Fathpur, which was instituted as a district under our colonial rule. Initially, under the Mughals, Fathpur as a Shīʿah was under Awadh. Under the colonial masters, it was upgraded as a district, which is situated between Kanpur and Allahabad. The importance of this qasba
which now is reduced to being only a village, can be gauged from 3 or 4 facts which I am going to lay before you. Number 1, the entire district was made to carry its name to distinguish it from its better known town of the same name, Fathpur Sikri. The entire district was nomenclated when it was the area was turned into a district. It was nomenclated as Fathpur Haswa. So even today, I mean, in general, I mean, although if you go there, तो अब उसमें सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा फतेहपुर, लेकिन वहाँ के अतराफ के, इलाहाबाद के, कानपुर के, फतेहपुर के, बांदा डिस्ट्रिक्ट, जो आसपास के जितने इलाके हैं, वहाँ के लोगों से अगर आप बात कीजिएगा, या मुझसे भी अगर कोई पूछता है कि तुम्हारा वतन क्या है और मैं कहता हूँ फतेहपुर, तो पूछते हैं कौन सा फतेहपुर, क्योंकि एक फतेहपुर राजस्थान में भी है. Fathpur Sikri, as all of you know, was the capital of the Mughal Empire. Incidentally, a place on which I have written a book, as Yogesh was telling you about. So I always have to qualify Fathpur Haswa, the name which was given to it during the colonial period. तो आज भी उसकी, अब ज्यादातर लोग आज की तारीख में हसवा नहीं जानते, लेकिन जैसे ही फतेहपुर हसवा कहिए तो उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा कौन से डिस्ट्रिक्ट की, कहाँ की, ईस्टर्न पूरब की बात हो रही है, कहाँ के ऊपर ये लोकेटेड. तो एक चीज जो बताता है कि कभी ये हसवा जो आज एक गांव है, वो कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थी, वो ये है कि इसका नाम जो है वो डिस्टिंग्विश करता है पूरे यानी इलाके को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को. अब इवन दी रेलवे स्टेशन, जब अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाई, तो उस वक्त भी जो शहर फतेहपुर था, वहां पे जो मेन रेलवे स्टेशन बनाया गया, उसका नाम फतेहपुर हसवा रेलवे स्टेशन रखा गया. जबकि जैसे मैंने अभी बताया कि खुद ये कस्बा जो था वो वहां से थोड़ा दूर था. और यही नहीं, बल्कि the second fact which points out to the importance of this place, significance of this place, that it was having some significance during the colonial period at least, was the fact that when this railway line between Calcutta and Delhi was laid out, a separate station was also founded within this qasba of Haswa. लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि हसवा नाम जो था वो तो फतेहपुर से जोड़ के मेन रेलवे स्टेशन को दे दिया गया था. तो अगर यहाँ पे भी उसी नाम से स्टेशन खोल दिया जाता तो कंफ्यूजन होता. तो वी आर इन्फॉर्म कि जो स्टेशन की जमीन जिस इस कस्बे के गांव में लोकेटेड थी, यानी फैजुल्लापुर के नाम से, उस नाम से यहाँ का स्टेशन रखा गया. इंसिडेंटली द विलेज ऑफ फैजुल्लापुर had been established by one of the residents of this qasba itself, one of the Mughal period residents of Haswa. So today we have a railway station, छोटा सा फैजुल्लापुर, जो एक्चुअली हसवे का रेलवे स्टेशन है. तो इतना इसकी इंपॉर्टेंस थी कि यहाँ के ऊपर एक अलग से एक स्टेशन भी, भले छोटा सा हो, लेकिन वो एस्टेब्लिश किया गया, जो ये बताता है कि इस इलाके में इसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी थी, क्योंकि यहाँ से सामान लाया ले जाया करता था. दैट इज वाई स्टेशन जहाँ पे पैसेंजर ट्रेन्स भी और मालगाड़ी भी दोनों वहाँ पर रोकी जाती थी. So these two things, for example, point out. Then there is a third evidence मैं आपके सामने रखूंगा, जो शो करती है कि एक जमाने में कितना
ये अहम जगह थी। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप में से कुछ लोगों ने एक नाम सुना हो, जोसेफ टाइफनथॉलर। Now, Typhon is one of the visitors who came to India between 1743 to 85. That was the period when Typhon was here. और शायद आप लोगों ने टाइफनथॉलर का इसलिए भी नाम सुना हो, आपने इतिहास पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन जो पिछले 10-12 साल में जो हिंदुस्तान में एक एटमॉस्फेयर रहा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के केस को लेके, अगर आपको याद हो कि उसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो उसने भी इस पर्टिकुलर ट्रैवलर के अकाउंट को बड़ी इंपॉर्टेंस दी थी, टाइफनथॉलर के अकाउंट को। उस पीरियड में हर अखबार में टाइफनथॉलर का नाम छपा था। तो अब विजिटर हु कम्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी और जिसको काफी क्रेडिट्स दी गई, एक्चुअली दिस अकाउंट वाज ट्रांसलेटेड from French to English. French translation वो ओरिजिनल भी अवेलेबल है और ट्रांसलेशन भी उसका ओरिजिनल है, वो मौजूद है, अभी भी पाया जाता है। बल्कि अगर आप इंटरनेट पे आप हंट करेंगे तो आपको ओरिजिनल किताब भी, जैसे आप जोसेफ टाइफनथॉलर करके ढूंढेंगे, जोसेफ टाइफनथॉलर PDF ढूंढिएगा तो ये पूरा टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। नाउ Typhon had given an account, a description of the history and geography of India, especially those places where he had visited. Now, Haswa was one of the places which he had visited. तो उसके ऊपर भी उन्होंने एक पैराग्राफ दिया है. Now, it is very significant that Typhon uses the name Hanswa with an N. जैसे मैंने कहा कि अभी ये हसवा अब बन गया है, वो हंसवा के नाम से, तो वही हंसवा करके उसको उन्होंने टाइफनथॉलर ने कहा, और कहा कि इट्स अ रूइनस टाउन. बड़ा खंडर ज्यादातर पड़ा हुआ है, टाइफनथॉलर लिखते हैं, बट इट इज अ टाउन विच हैड 2 forts, 2 किले थे इसके अंदर, one of bricks and another of mud. Incidentally, अब मैंने जाके क्योंकि मेरा वतन है and I keep on visiting the place, मेरा बहुत ज्यादा ताल्लुक यहाँ से रहा नहीं. मैंने आज से 20 साल पहले अपने वतन जाना शुरू किया. बचपन में कभी नहीं गया. I was born and brought up at Aligarh. लेकिन 20 साल पहले से हम लोगों ने का कल्चरल वहाँ के ऊपर जिस चीज के लिए जाना जाता है, मुहर्रम, वन ऑफ द शियाइट कमेमोरेटिव विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स फेस्टिवल तो नहीं, फेस्टिवल तो गेटी का होता है, दैट इज समथिंग. यहाँ पे हम लोग उसको एज अ पीरियड ऑफ माउंटिंग बनाते हैं, लेकिन नाउ आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू दैट प्लेस. वहाँ काफी ज्यादा मुहर्रम मनाया जाता है. तो सिर्फ मेरा कांटेक्ट वहाँ उतने दिन के लिए होता है, लेकिन जब भी मैं गया तो मैंने वहाँ ढूंढा तो कुछ रिमेन्स मुझे पक्के फोर्ट के तो मिल गए, लेकिन मड फोर्ट कौन सा था जिसको टाइफनथॉलर ने 18th सेंचुरी में बिटवीन 1743-85 वहां देखा. दोनों फोर्ट्स को उसने देखा. यानी इतनी बड़ी जगह थी कि जहाँ पे उसके आबादी के अंदर 2 किले बने हुए थे. I was unable to locate. जाहिर मठ का था तो खत्म हो गया होगा. I'll also now after some time also narrate its history, what happened in 1857. In 1857 में इस जगह का ऐसा रोल रहा था कि जिसमें जो कार्ल मार्क्स ने जो अपने आर्टिकल्स 1857 में लिखे थे, इस जगह का मेंशन उसमें भी आया था, कैसे यहाँ के ऊपर यहाँ के रिबेल्स ने अंग्रेजों की आर्मी को मारा था, वो खत्म किया था. So possibly उसमें खत्म हो गया होगा. Whatever, today the remains of some remains of only the a brick fort remains. The other one is now gone. Lastly, जब मैंने इस लेक्चर को शुरू किया तो I said that Ain Akbari mentions, Abul Fazl mentions this place, Haswa. और जब उनका आप जो टेबुलर फॉर्म में उन्होंने रेवेन्यू चार्ट्स दिए हैं एम्पायर के, उसको आप अगर आप देखेंगे
So what you would realize, and it really surprised me, was that the town of Fathpur itself had a lesser land revenue collected than Haswa. जो लैंड रेवेन्यू जमा किया जाता था वो हसवे से ज्यादा था बनिस्बत the revenues which were accruing from the town itself. So in other words, the place pre-modern was an important township. Let me, however, start with the term itself, कस्बा. ठीक है, मैं एक ऐसे सोसाइटी के सामने बोल रहा हूँ, अबोहर हिस्ट्री प्रोजेक्ट में बोल रहा हूँ जहाँ कस्बों पर ही काम हो रहा है, लेकिन आई प्रिज्यूम दैट देयर वुड बी मेनी अदर्स हु वुड बी जॉइनिंग जिनके लिए ये टर्म कस्बा जो है माइट नॉट बी fully explained. Especially I would be dealing with the term Kasba, how it has been understood by the students of history. The dictionary meaning, as all of us know, कस्बा का मतलब होता है, अगर डिक्शनरी को आप कंसल्ट करेंगे, a large village or a small town. उसको आप अंग्रेजी में एक टर्म होता है हैमलेट, आप उस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जनरली स्पीकिंग. ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड इन इंडिया, नेचुरली जब हम मिडिवल का टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग इट फॉर मिडिवल फॉर इंडिया, एंड स्पेशली अंडर द मुगल पीरियड, दैट इज from 16th to 18th centuries, a town was classified either as a bulda or शहर, या तो जो मुगल सोर्सेज आप पढ़ें या डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पढ़ें, या जो एनल्स हैं उस पीरियड के, वो कोई भी चीज आप उठा के अगर फारसी में खास तौर से अगर लिखी गई है तो उसको अगर आप पढ़ें तो आपको टाउन के लिए दो टाइप के रेफरेंसेस मिले, दो मिलेंगे. एक बुल्दा या शहर, या तो बुल्दा पुकारा जाएगा या शहर पुकारा जाएगा, जो एक ही चीज सिग्निफाई करती है, और उसके साथ साथ उससे जो डिफरेंशिएट करता हुआ टर्म आएगा वो कस्बा, यानी या तो बुल्दा या शहर, जो भी एक चीज इसमें से, जैसे बुल्दा लाहौर, बुल्दा आगरा, या शहर आगरा, शहर लाहौर, तो ये इंटरचेंजेबली बुल्दा या शहर का इस्तेमाल हो जाएगा. उसके अलावा जो नाम आएगा वो कस्बे का नाम आएगा, कि कस्बे. Now, while the Kasbah, as I said, was a township or a hamlet, the Bulda or a शहर was a big city. City के फॉर्म में उस टर्म यूज किया जाएगा. A शहर comprised of many bazaars, mandis, commercial and administrative quarters, innumerable mahallas, so on and so forth. The Kasbah was a miniature form of the Shahar, with a bazaar, certain mahallas, but a way of life which would distinguish it from that of a typical village. Which was a village naturally would be predominated by agriculture and professions related with agriculture. As far as Kasbah would be is concerned, ये predominance agriculture की रहेगी. उसके साथ साथ दूसरे भी जो
शहरों में है वो उसका जिक्र यहाँ पे मिलेगा. One can say that a qasba was a step from rural to urban. बहुत सी उसकी सिफतें ऐसी थी, बहुत सी उसकी खुसूसियात ऐसी थी जो किसी भी एक गांव की होती हैं, लेकिन वो गांव से ऊपर उठ के था, वो शहर की जानिब था, और जो अंदाज शहर का होता है वो चीजें भी थी और गांव की चीजें भी थी. ये बीच की एक चीज थी. A qasba was also home to many shurafa, that is gentry or upper caste, especially the Muslim households of the Mughal period. अगर आप जितने भी मुसलमान खानदान आपको मिलेंगे, वो आपको आमतौर से किसी ने किसी कस्बे के मिलेंगे. मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मैं क्योंकि आई एम नॉट वेरी अवेयर अबाउट पंजाब एंड अदर प्लेसेस, बट आई कैन टेल यू दैट फॉर एग्जांपल अगर आप लखनऊ चले जाएं और लखनऊ में जो मुस्लिम जेंट्री, फॉर एग्जांपल सादात, आप उनके बारे में मालूम करें तो पता ये चलेगा कि कोई भी जो ये शुरफा क्लास जो लखनऊ में इनहैबिटेड है, जिनके वहां हवेलियां हैं, उनमें से कोई भी अब लखनऊ का नहीं है, कस्बात से बिलोंग करते हैं, फला जगह के, फला जगह के, फला जगह के. तो कस्बा वाज द फाउंटेन हेड of these shurafa families of that period. It is quite difficult to pinpoint when this qasba, the term qasba, occurred for the first time. आपने देखा होगा कि मैं जितनी देर से बता रहा हूं, मैं एग्जाम्पल आपको सिर्फ मैंने मिडिवल एक तरफ यूज किया, लेकिन दूसरी तरफ मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं वो सिर्फ मुगल पीरियड से दे रहा हूं. कब पहली बार इसका टर्म इस्तेमाल हुआ वो थोड़ा डिबेटेबल. वन डॉक्यूमेंट which is dated 1495, Lodi period, possibly is the first where this term qasba occurs. पहली बार शायद हो सकता है कि अगर जैसे मैंने कहा अभी मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, कस्बात पे बहुत कम काम अनफॉर्चुनेटली, तो हो सकता है कि कहीं और भी मिल जाए, क्योंकि आज हालत ये है मुल्क की कि जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, खासतौर से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो बहुत कम लोग उनको कंसल्ट कर रहे हैं. यूरोपियन सोर्सेज तो पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जो मिडिवल पीरियड के प्राइमरी सोर्सेज हैं, जाहिर है प्राइमरी सोर्सेज में फारसी में लिखे हुए सोर्सेज आएंगे, राजस्थानी में लिखे हुए सोर्सेज आएंगे, गुजराती में लिखे हुए सोर्सेज आएंगे. इनको बहुत ज्यादा लोग कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो जो क्लासिकल सोर्सेज जिनको बहुत ज्यादा लोगों ने, आईने अकबरी, बादशाह नामा, बड़े बड़े इस टाइप के जो क्रॉनिकल्स हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का इस्तेमाल कम है. तो ये हो सकता है कि कस्बे का टर्म लोधी पीरियड से पहले भी कहीं आ रहा हो, लेकिन किसी ने अब तक रिपोर्ट नहीं किया. पहला 1495 के डॉक्यूमेंट में, लोधी पीरियड के डॉक्यूमेंट में मिलता है, और उसके बाद का रेफरेंस जो हम लोगों को मिलता है मेडिवल हिस्टोरियंस को जो नोन है, दैट इज अ फरमान ऑफ द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर. नाउ बाबर मेंशंस अ कस्बा. अब मैं इस बात अनफॉर्चुनेटली नाम भूल रहा हूं, उस कस्बे का नाम क्या था, अ कस्बा इन मथुरा, जिसका बाबर इस फरमान में जिक्र करते. अनफॉर्चुनेटली हम लोग बाबर को सिर्फ बाबरी मस्जिद से जोड़ते हैं और अयोध्या के क्लैश से जोड़ते हैं, और लगता है जैसे सिर्फ वो एक आइकोनोक्लास्ट थे और नथिंग एल्स. लेकिन अगर आप बाबरनामा को कभी आप उठा के देखें, इट्स अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड यू वुड एक्चुअली बी वेरी प्लीज्ड इफ यू स्टार्ट हिज लिटरेरी स्टाइल, हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदुस्तान. पॉसिबली इतना खूबसूरत डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदुस्तान शायद ही किसी और सोर्स ने इससे पहले दिया. In fact, it's a gazetteer about India. The term Qasba then ultimately becomes quite frequent
as far as the sources of Akbar's period is concerned. अकबर के पीरियड में तो तकरीबन हर दूसरे सोर्स में कस्बों का जिक्र आता है। अब वो बार बार हर जो भी सोर्स उठा के देख लीजिए, अकबर के पीरियड में कस्बा 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 काफी आपको ये मिलेगा। अब लगता है कि काफी पॉपुलर टर्म हो चुका था उस पीरियड, ये कंसेप्ट पॉपुलर हो चुका था। I'll cite only one. There is this source, Nizamuddin Ahmad Bakshi. He is the author of a very important work which was written during the period of Akbar. And this source is known as Tabaqat-e Akbari. It's basically a description of the nobles of Akbar's period. Tabaqat-e Akbari. And here, Nizamuddin Ahmad बायोग्राफीज और नोबल्स के बारे में लिखते लिखते अकबर की एम्पायर के बारे में भी बता रहा है, कितनी बड़ी एम्पायर। एंड ही राइट्स, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, दैट द डोमिनियन ऑफ अकबर कंप्राइजेस ऑफ 120 शहर। अकबर की एम्पायर में 120 शहर, बुल्दा और शहर दोनों, जैसे मैंने कहा कि वो टर्म इस्तेमाल करते, एंड 3200 कस्बास। जो अकबर की एम्पायर है उसमें 3200 कस्बे हैं। दिस इज व्हाट द ऑथर ऑफ तबक़ात अकबरी टेल्स अस। तो इसका मतलब ये है कि जाहिर है कि ऐसा ये मतलब नहीं है कि टाउन्स इससे पहले नहीं मौजूद थे, लेकिन ये टर्म कस्बा जो है वो पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है और ये समझ में आता है कि अकबर के पीरियड में पूरी एम्पायर को जो स्टडी किया जाता है तो अर्बन इंडिया जो अकबर का है उसमें 120 शहर हैं, बुल्दे हैं, और 3200 कस्बे हैं जो इन शहरों के अंडर में आते हैं। नाउ वेदर अ बुल्दा और अ कस्बा, चाहे वो बड़ा सिटी हो या ये टाउनशिप हो, अ टिपिकल मिडिवल इंडियन town had a number of prerequisite features which were common to all urban settlements, which had a civic population comprising largely of the non-agriculturists. उसकी काफी डिटेल्स हैं, नेचुरली मैं उन प्री-रिक्विजिट फीचर्स की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन ये दोनों में एक हमको चाहे वो बुल्दा का जिक्र हो रहा हो चाहे कस्बे का जिक्र हो रहा हो, बहुत से कॉमन फीचर्स इनमें आपस में हमको नजर आते हैं। ड्यूरिंग द 17th century, most of the shahars had a symbiotic relationship with its mercantile classes and thus were mostly surrounded by an outwall. फसील शहर सल्तनत पीरियड में नहीं था ऐसा, लेकिन 17th सेंचुरी आते आते, मुगल पीरियड आते आते ज्यादातर जो शहर थे मुगलों के अंदर में, क्योंकि उनमें मर्केंटाइल क्लासेस में और रूलिंग एलिट्स में एक बहुत सिम्बियोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर गई थी, तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ जो चार दीवारी होती थी वो सिर्फ उन इलाकों के चारों तरफ नहीं होती थी जहां इंपीरियल अथॉरिटी या नोबिलिटी रहती है, बल्कि इंटायर सिटी जिसमें सिविक पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, देयर ड्वेलिंग्स, वो सब के सब एक फसील के अंदर होते थे।
मैं रह रहा हूँ, वहाँ अगर हमें किसी को ये कहना होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब खुले जहन के नहीं है, बहुत ज़्यादा उनका वैसे व्यूज नहीं है, तो कहते हैं अरे बड़ी कस्बाती मेंटेलिटी है इनकी। जो एक ज़माने में कस्बों का कल्चर बड़ा यूनिक हुआ करता था और उससे डिराइव होता था, तो हम थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में उसको देखने लगे हैं। तो दैट हैज बीन वन ऑफ द डेवलपमेंट्स regarding the qasbas. Being permanent seats of certain elite households, shurafa, each qasba was also known for its typical culture. जो मुगल सोसाइटी थी, इसमें बेसिकली 2 सेक्शंस का बार बार जिक्र आता है। 18th सेंचुरी दिल्ली में भी आता है और लखनऊ में भी आता है और दूसरी जगह भी आता है। One, the ashraf, the gentry class, which included people like the soldiers, administrators, scholars, theologians, Sufis, ये पढ़ी लिखी जो क्लास थी, yeah, but most of them, all who were landed aristocracy, they were supposed to be the ashraf. तो एक इनका सोसाइटी में जिक्र आता है कि सोसाइटी, मुगल सोसाइटी 2 में थी, एक अशराफ और दूसरे अजलाफ, AJLAF, अजलाफ. They are also known as razil, the lowly, razil. रजील कहते हैं लोली, लोली क्लासेस और जो शरीफ लोग हायर क्लास के. Now razil और अजलाफ, whether in Delhi or in any of the places, they were actually laboring classes, धुनिया, जुलाहा, लोहार, कसाई, मीरासी और जाने कौन कौन से. लेकिन जाहिर है कि जो कल्चर डोमिनेट कर रहा था, कस्बाती कल्चर, जो आज पिजोरेटिव टर्म्स में देखा जा रहा है, लेकिन उस पीरियड में जो हर कस्बा अपने कल्चर के लिए जाना जाता था, वो कल्चर होता था उन अशराफ जो प्रीडोमिनेट कर रहे थे, उससे वो जाना जाता. बट रिमेंबर, वी आर टॉकिंग ऑफ अ पीरियड व्हेन इकोनॉमिकली एंड सोशली डाउनट्रॉडन were hardly counted or considered. वो तो एग्जिस्ट नहीं करते थे अगर जब हिस्ट्रीज लिखी जाती थी. Thus, in the Indo-Gangetic basin, where the Qasba, which I am dealing with, lies, they were identified as habitations, bastis, of a typical caste और एथनिक ग्रुप, जो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी से भी हो सकता था, कास्ट आइडेंटिटी से भी हो सकता था, किसी और टाइप की कल्चरल आइडेंटिटी से हो सकता था. फॉर एग्जाम्पल, और ये जो प्रीडोमिनेंस थी कल्चर की, ये उस पर डिपेंड नहीं करती थी. लेट अस बी वेरी क्लियर कि उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ पॉपुलेशन में कितनी थी. दे माइट बी इन अ माइनॉरिटी, they were generally in a minority, लेकिन culturally they were supposed to be superior और वो predominant होती थी. For example, we have bastis of Ahirs, Ahiron की बस्ती, a place, a qasba which is dominated by the Ahir community, or a settlement of the Rajput community, Rajputon की बस्ती, the basti of the Sheikhs, or the bastis of Sadat, the Sayyids. I, for example, know of 3 qasbas which are identified as bastis of the Sayyids, Sadat की बस्तियां, बड़ी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर इन सादात की बस्तियों के जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, if you actually count the actual number of people who were belonging to this caste or social group, जो वहां रह रहे थे, they were actually in a great minority. They are minuscule. For example, in Aligarh, जहां से मैं इस वक्त बोल रहा हूं,
In district Aligarh, there is a Qasba known as Qasba Jalali. It is a place which is very old and mentioned even by Ibn Battuta, the traveler. गाना तो सुना ही होगा इब्न बतूता, जिसके कौन सा जूता बड़ा पॉपुलर हो गया उस फिल्म की वजह से. तो इब्न बतूता जो 14th सेंचुरी में लिख रहा है, उसमें भी वो जब कोल का जिक्र करता है, अलीगढ़ का जिक्र करता है, तो कोल के पास एक सेटलमेंट बताता है जिसको जलाली, इनफैक्ट ये वही जगह है जहाँ पे उसको लूटा गया था. बैकवर्ड्स ने इसको आके लूटा था, इसके कुछ लोगों को मार भी दिया था. तो ये बहुत पुराना एक जलाली नाम से बस्ती है. टुडे इट इज नोन एज दी बस्ती ऑफ द सादात्स, सैयदों की ये कस्बा कहलाता है, शिया सैयद्स का. और अगर आप कहीं वहां पहुंच जाएं तो आपको मुश्किल से 2 महल्ले मिलेंगे जिसमें शिया सादात के मुश्किल से 24-25 घर होंगे. बड़ी बस्ती है, काफी बड़ा कस्बा है, 2-3 बाजार हैं, सब कुछ है उसके अंदर. आज एक कन्फाइंड इलाके में कुछ सादात शिया सैयद फैमिलीज हैं, लेकिन आप यूपी में किसी कोने में चले जाइएगा, आप कहिएगा भाई सादात बस्तियां कौन कौन से, और वो जलाली है जहाँ सैयदों की बस्ती है. हाँ, इतने से. लेकिन क्योंकि उनका कल्चर जो है वो डोमिनेट, साल भर जलाली का जो जिक्र आएगा वो शिया कल्चर के लिए. सो दैट इज व्हाई दे आर आई मीन नोन बाय दैट. Or for that matter, there is another such basti of the Sayyids known as Bilgram. Bilgram is a place in district Hardoi, once again in UP. अब अक्सर आपने नाम सुने होंगे फला बिलग्रामी. पाकिस्तान में भी बसे हुए हैं, हिंदुस्तान में भी बसे हुए हैं. काफी यानी जो आपको मुस्लिम इलीट क्लास आपको मिलेगी वो अपने नाम के आगे बिलग्रामी लगाते हुए मिलेंगे. They belong to this Qasba of Bilgram, which is in district Hardoi. Again, it is supposed to be a Sadat basti, but unlike Jalali, it is predominated by the Sunni Sadats. आमतौर से सुन्नी सादात के लिए जो हुसैनी सैयद भी कहलाते हैं, और they have given their culture to the entire area, and large number of books have been written, Masul Kiram, और कई किताबें बाकायदा बिलग्राम पे लिखी गई हैं. और ऐसा लगता है कि जाने कितने ज्यादा तादाद में लोग रहे होंगे. छोटा सा कस्बा है और उसमें जिनका जिक्र इतना बहुत ज्यादा होता है तो वो एक महदूद, एक बहुत ही कम उसमें, लेकिन इनका कल्चर इतना बढ़ गया है कि चारों तरफ बिलग्रामी बिलग्रामी. आप बिलग्रामी कहिएगा, अगर हम जिस एरिया में हम रह रहे हैं, हर आदमी समझ जाएगा कि अच्छा ये किसका आप जिक्र. The third in this series is Haswa, जिसके बारे में मैंने आज ये रखा था. Again, it is supposed to be a basti of Sadat, a place, a settlement of the Sayyids. Incidentally, out of 1,675 households आज की तारीख में, there are only 25 houses जो शिया सादात जिससे मैं बिलोंग करता हूं, हमारे 25 घर. अब वो भी मेरे देखे देखे, यानी 20 साल पहले जब मैंने आपसे जिक्र किया कि मैंने जाना शुरू किया था, 7-8 घर थे. अब वो डिवाइड होते होते, नए बनते बनते, नई जनरेशन बनाते बनाते ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक हवेली थी जिसका डिवीजन होते होते इतना बन गया. एक महल्ला है, एक महल्ले के एक कोने में एक फैमिली, अब जो डिवाइड होके वो अलग अलग खानदानों में बढ़ती चली जा रही है. सब मिला के 25, 26, 27 घर होंगे. दैट इज ऑल. बट थ्रू आउट द अवध रीजन, द place Haswa is famous for its Shia culture, Shia Azadari. Apart from the Shia family, 25-26, there are Sunni Sheikhs, Quraishis, Sunni Sayyids,
but all the Muslims taken together are spread over only 2 mohallas. The other mohallas are predominantly non-Muslims, Hindus, Rajputs and others. लेकिन ऐसा समझा जाता है कि जैसे एक तो मुसलमान हसवा है और दूसरे मुसलमानों में भी सैयदों की बस्ती है, 25 घर. These qasbas, at least throughout North India, were the chief arena of cultural and social activities. In the words of late Professor Mushirul Hasan, जो कस्बा के लिए उन्होंने एक जुमला कहा है, this is where life was lived. This is what he says, this is where life was lived. Qasbas was a place where poetry, literature and music flourished, and the fusion of culture took place, Hindu-Muslim culture. These were the crucibles of inter-community relations and popular culture, development of popular culture. They were the places from where assimilative thoughts and liberal convictions emerged. These were also spaces where typical rituals and customary traditions were given shape and concretized. One of the first to point out these elements, जो मैंने कस्बा को जिस टाइप से ये जो इंडो-गैंजेटिक कस्बास जहाँ ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ जनरल टर्म्स से बात कर रहा हूँ, but also true for हसवा. All these elements are for the first time pointed out by Maulvi Abdul Haq, 1870 to 1961. जब मौलवी अब्दुल हक साहब ने मासरुल किराम जो गुलाम अली आज़ाद की लिखी हुई किताब थी, गुलाम अली आज़ाद had died in 1785, 18th century के राइटर थे. इन्होंने मासरुल किराम फारसी में लिखी थी और मौलवी अब्दुल हक जो उर्दू के जानी मानी शख्सियत हैं, उन्होंने जो जिनका इंतकाल 1961 में हुआ, उन्होंने इस मासरुल किराम का उर्दू अनुवाद किया था. Now in this Urdu rendering of this Persian work, Abdul Haq points out that these qasbas were known for their, within inverted commas, uncomplicated lifestyles of the inhabitants, which are in contrast to the lifestyles of the people living in the शहर. बड़ी complex जिंदगी शहरों की है और ये कस्बाती जो लोग हैं, ये जो कस्बों के रहने वाले हैं, इनकी एक बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल है, लेकिन डिस्टिंक्ट कल्चर के साथ. नाउ दिस कस्बा हसवा, as I said, is located in eastern Uttar Pradesh, 12 kilometers from the district center, on the road towards Allahabad. There is hardly anything which is known about its antiquity or early history. Myths are there, कोई concrete history नहीं मिलती. Now, for example, let us start with the name of this place, Hanswa. अब जो करप्ट होकर अब हसवा बन गया, Hanswa. The term, there is a controversy that it is derived from two sources. पहला जो ख्याल जो कहा जाता है और जो पॉपुलर है, आप किसी भी हंसवे के रहने वाले से पूछेंगे, डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर चाहे नेवल का हो चाहे इसके अलावा कोई और लिखा हुआ हो, वहां जाके चेक कीजिएगा तो वो दो लेजेंड्स बता रहे हैं उसके लिए, और उसके लिए सब लोग प्रूफ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a typical resident of Hanswa would say that this place is related with Mahabharata. महाभारत से जोड़ते हैं. तो
मुस्लिम कल्चर डोमिनेटेड है, शिया कल्चर डोमिनेटेड है। मेरे खानदान के किसी बुजुर्ग से आप पूछिएगा, बड़े फख्र से कहेगा कि हम तो उस शहर के रहने, उस बस्ती के रहने वाले हैं जिसका ओरिजिन महाभारत से। कैसे? देयर वाज अ राजा हंसध्वज, एक नाम लिया जाता है राजा हंसध्वज। 3 भाई थे ये राजा हंसध्वज, महाभारत में जिक्र है इनका। हंसध्वज, मोरध्वज, शंखध्वज। हंसध्वज के नाम से हंसवा, और हंसवे के पास 2 और इलाके हैं जिनमें से एक मोरध्वज के नाम से है, एक शंखध्वज के नाम से। यानी पूरा ये इलाका ये कहा जाता है कि महाभारत से रिलेटेड। दिस राजा हंसध्वज, इट इज सेड, was a king of चंपकपुरी, जिन्होंने महाभारत में हिस्सा लिया था। और कहा जाता है कि क्योंकि महाभारत के इस कैरेक्टर से इस इलाके की शुरुआत है, तो वो हंसध्वज ने अपने इलाके का, क्योंकि यहीं से वो रियासत करता था, चंपकपुरी जो करीब में है, लेकिन कैपिटल ये था, ये गांव जो कभी उसका कैपिटल था, और उसी के नाम पे ये हंसवा कहलाता है। The second legend, again narrated very with pride by the Muslim residents also, is the story of another king who was similarly named, Raja Hansraj. Neville, in fact, notes down this legend in great detail. अब ये एंशियंट का पूरा छोड़ के बिल्कुल एट द टाइम ऑफ अर्ली मिडिवल आ जाते हैं, राजा जयचंद के पीरियड। राजा जयचंद जिस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड है, जब दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश कर रही है, और तोमर को हरा के चौहान आते हैं, और चौहान को हरा के कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक राजा जयचंद को हराते हैं, फिर पृथ्वीराज आते हैं, so on and so forth. I'm not going into the details of that history, but it is dating back to Raja Jayachand's period that this area, which now is known as Hanswa, was held by Raja Hansraj, who was in fact one of the relatives of Raja Jayachand. And the army of Qutbuddin Aibak defeated him, और ऐबक की आर्मी, उनके 2 नेव्यूज थे जो लीड कर रहे थे। एक का नाम अलाउद्दीन था, एक का नाम कुछ और था। और जब ये जंग हुई राजा जयचंद में के इस कमांडर राजा हंसराज और ऐबक के कमांडर्स में, तो अलाउद्दीन नाम का कमांडर पहले मारा गया। लेकिन जाहिर है कि भाई वो इतने ये लोग पावरफुल थे और अल्लाह वाले लोग थे कि उसका सर कटने के बाद भी वो लुढ़कता हुआ काफी दूर तक जाके गिरा, और जहां गिरा वहां के ऊपर ये शहर हंसवा के नाम से आबाद हुआ, जो एक्चुअली याद दिलाता था उस आदमी का जिसने अलाउद्दीन को मारा था, इस आदमी को मारा था, हंसराज, राजा हंसराज। तो वो हंसध्वज के नाम से महाभारत के पीरियड का नहीं, बल्कि जिस वक्त दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो रही थी उस पीरियड का एक था राजा हंसराज, जिसके, और अगर आप वहां जाएंगे और पूछेंगे तो एक मकबरा भी दिखाया जाता है। देयर इज अ टूम within this settlement, which sometimes certain people show as the maqbara of this relative of Alauddin who had been killed by the relative of Jayachand. Incidentally, this same tomb is being claimed by our family, the Syeds, as the tomb of one of their progenitors. तो एक कहानी उसे वहां से जोड़ती है और एक सादात अपने से जोड़ते हैं कि नहीं हमारे एक पूर्वज थे जिनकी यहाँ के ऊपर, बहरहाल वहां के ऊपर एक खतबा भी लगा हुआ है, इंस्क्रिप्शन है
1138 हिजरी का, काफी लेट 18th सेंचुरी का, जो डेट दे रहा है, और बाद में वो बनाया गया। A third legend which is circulated about this place relates this area with Ramayana. एक महाभारत से रिलेट करती है, एक कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड में राजा जयचंद के खानदान से रिलेट करती है, और एक ट्रेडिशन जो वहां पे काफी पॉपुलर है वो उसे रिलेट करता है रामायण की कहानी से। It is said that at a time when Ram ji had returned back to his Ayodhya, और सीता जी को वनवास दे दिया गया था, और सीता जी जो थी अपने बच्चों के साथ, लव कुश के साथ जाके और राम जी से अलग होके रह रही थी, और राम जी उनको तलाश रहे थे, और सीता जो थी वो एक तरीके से गायब थी, वो नहीं मिल पा रही थी। उस पीरियड में एक अश्वमेघ यज्ञ किया गया, घोड़ा दौड़ाया गया। अब ये घोड़ा दौड़ाया गया था, लेकिन इस मकाम पे आके जहाँ हसवा बना हुआ है, यहाँ पे आके उस घोड़े को मार दिया गया। और राम जी जब निकले मालूम करने के लिए कि आखिर किसने उनके अश्व को मार डाला है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ 2 बच्चे थे जिन्होंने अपने तीर कमान से आपके घोड़े को मार दिया है। उनकी तलाश की गई और उससे पता चला कि अच्छा, सीता जी यहीं पास पे रहती। And thus, in a way, for a certain period of time, Ram was reunited with Love and Kush, and the place where he reunited was this territory of Haswa. So these are some of the ways in which the remote history of this, area, जो कभी अवध के अंदर में रहा था, अवध कल्चर का एक रिप्रेजेंटेटिव था, जहाँ के ऊपर जो शिया सादात फैमिलीज हैं वो प्रीडोमिनेट कर रही थी, जहाँ के ऊपर कुछ राजपूत और दूसरे लोग इस बस्ती में रहते हैं, जो उस टाइप के लोग हैं। लेकिन जो उसके बारे में लेजेंड, यही लोग जो सर्कुलेट करते आए हैं, इसमें दोनों मजहबों का एक तरीके से मिला जुला एक कहानी उसमें निकल के आती है। Now, as far as I am concerned, I know that in this area where my neighborhood is located, where my house is located, there is a very large pond, एक तालाब है बड़ा पुराना, and from within the this talab, we start getting the Kushan period bricks. So at least that establishes the antiquity of the place. At least, और ये सब जो legends हैं वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन कुशाण पीरियड के जरूर यहाँ पे हमको ब्रिक्स मिलती हैं जो कम से कम इसकी हिस्ट्री को एंटिक्विटी में ले जाती हैं. Not only that, but in fact within the courtyard of my house and certain other places, when we were rebuilding our structures, certain red sandstone sculptures of Lord Vishnu were also dug out. तो यहाँ के ऊपर जाहिर है कुछ ना कुछ यहाँ था कि जिसकी वजह से ये चीजें जो हैं यहाँ से मिल रही हैं. Ultimately in 1995, Times of India reported that the district magistrate of Fathpur was able to get a very rare Greek inscription which was being used as a shivling in one of the most prominent temples of this Haswa township. All these go to prove कि वो legends कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, लेकिन कम से कम इस एरिया की एंटिक्विटी जो उसको एक so called within inverted commas ancient India या हिंदू कल्चर से जो उसको जोड़ रही हैं वो हमें अच्छी तरह मिल जाती है. During the reign of Akbar, जब इसका बाकायदा जिक्र शुरू होता है, I cited आईने अकबरी, we know that it was this whole district of Fathpur along with Haswa were part of Suba Allahabad. The Suba Allahabad was divided into a number of subdivisions, and Fathpur itself under Akbar comprised of 2 sarkars, one known as Kada, other known as Koda.
कड़ा और कोड़ा. Sarkar Kara under Akbar had 12 mahals, subdivisions. One of those subdivisions, one of the mahal was Haswa, which was a pargana for some time. Now this area, this Sarkar of Kara, in which Haswa lies, rose into prominence during the period of Dara Shikoh. Very near to this place, we start getting the architectural remains of Dara's period. And then ultimately, Dara ka garden hai, palace hai, sarais hai, Aurangzeb ke period ki. You know that the history of Kara Manikpur became very important. Ultimately, this place gained prominence historically in 1857, when the Great Mutiny arose. In fact, as I mentioned earlier, that there is an article written by Karl Marx, जो उनके collected works में मौजूद है, where there is an entire, article devoted to how the English troops were massacred on the GT road by the villagers of Haswa. In fact, we know that this Haswa, Qasba, under the Mughals, before 1857, was placed on the Mughal highway. जो Mughal road थी, वो जो इलाहाबाद से लेके कानपुर और कानपुर से फिर आगे बढ़ती थी और उधर बंगाल की तरफ जाती थी, जो ये मुगल हाईवे था, ये और आज भी कोस मीनार उसके हसवा के पास मिलते हैं, जो उसी रूट के ऊपर था. एंड दैट इज व्हाई पॉसिबली इट वाज सो प्रॉस्पेरस that its revenues were greater than the revenues of Fathpur itself. But after the revolt of 1857, when great massacres of by mutineers of the English troops took place, the route was changed. जो GT road है, जो Grand Trunk Road है, रास्तों उसको बदल के इस आबादी से दूर लोकेट कर दिया गया, and possibly that defines how the economic importance of the Qasba was reduced, and ultimately it kept on reducing unless आज वो सिर्फ एक village के form में gradually वो survive करता. Under the Britishers, it was in fact administered by Act 20 of 1856, और ये वही एक्ट थी जिसके अंडर में टाउन्स मेंटेन किए जाते थे, और उस एक्ट के तहत हसवा का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था. We have a number of architectural remains within this. For example, there is a Qazi ka talab, a Rani ka talab, so on and so forth. I think I have there's not much time left for me to elaborate on that. And then there are two mohallas, जिसको मैंने कहा था कि जहाँ पे जो predominant culture जिनका है, जो लोग वहाँ रहते हैं. There is one mohalla which is known as Mohalla Chaudhrana. Incidentally, Chaudhary, as you know, is a term given to revenue collectors. खुद मुकद्दम चौधरी, जो सल्तनत पीरियड से, अलाउद्दीन के पीरियड से, इल्तुतमिश के पीरियड से जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे उनके लिए इस्तेमाल करता. तो जनरली ये नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे. बट इन माय एरिया, इन दिस कस्बा, द चौधरीज, द रेवेन्यू कलेक्टर्स वर द सादात, द सैयद्स. तो अगर मैं अपने वतन जाता हूँ तो मैं सैयद अली नदीम रिजवी के साथ साथ चौधरी सैयद अली नदीम रिजवी कहलाता हूँ. चौधराना महल्ला. और both
Sunnis and Shias, they are related to each other within this मोहल्ला चौधराना. इसी तरह से एक और वहां पे बहुत बड़ा महल्ला है which is known as मोहल्ला खैलदार. There the sheikhs and the sayyids, they predominate. In fact, during the 19th century, दो उर्दू की किताबें सर्वाइव करती हैं. One known as तारीख हसवा, the other known as पुश्तनामाए हसवा, which tell us about and which reproduce a number of faramins and documents which belong to these ashraf families of both Khaildar and Chaudhrana Mohalla, which are still surviving. Now, in the period very near to the independence of the country, 1940s onwards, ये पूरा इलाका आज तक, it is known for its one cultural aspect, and that is the commemoration of Muharram ceremonies. The Shia Sayyid family, Rizvi Sayyids, who trace their origin from Imam Raza of Mashhad, they trace their origin from Sadate Baraha, जो मुजफ्फरनगर area में आए, वहां से they migrated towards Unnao, and from Unnao they migrated towards Haswa. तो जो family trees शजरा है, वो इन तीनों का in continuation है, and their शजरा can be checked. जब अगर कोई सादाते बारहा का शजरा चेक कीजिएगा, फैमिली ट्री, या उन्नाव के सादात का चेक कीजिएगा, या हसवे के रिजवी सादात का चेक कीजिएगा, तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नजर आते हैं. और ये सारी जगह वो हैं कि जहाँ के ऊपर एक बहुत जोर शोर से मुहर्रम, यहाँ तक कि इतना मनाया जाता है कि जब मुहर्रम का चांद, पहली मुहर्रम आने वाली होती है, तो हसवे जो आज गांव है उसके हिंदू जो इनफैक्ट शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट से भी जो बिलोंग करते हैं, राजपूत की बात छोड़ दीजिए, जो दूसरे शहरों में रह रहे हैं, बॉम्बे में नौकरी कर रहे हैं, भोपाल में नौकरी कर रहे हैं, वो मुहर्रम का नाम सुन के वो ट्रेनों पे बैठ बैठ के दे रिटर्न बैक टू हसवा कि हमें तो मुहर्रम करना. तो मुहर्रम इन हसवा is commemorated not by only the minuscule Shia community, but also predominantly by the Hindu community. When taziyas are taken out during the period of Muharram, ये जो गंगा जमुनी तहजीब है इस इलाके की, वो बहुत प्रीडोमिनेंस के साथ देखी जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, the makers of the ताजिया, जो ये पेपर मैशे से और कागज से और लकड़ी के टुकड़ों से जो ताजिया इमाम हुसैन के श्राइन की जो रेप्लिका बनाते हैं, most of those who make them, they are Sunnis. These taziyas are kept on imam chowks, platforms. पूरी बस्ती में इमाम चौक्स बनाए गए हैं. कुछ हिंदुओं के हैं, कुछ राजपूतों के हैं, कुछ सुन्नियों के हैं, कुछ कुरैशियों के हैं, एक शिया का भी, बाकी सब दूसरी कम्युनिटीज के. हर उसमें महल्ले में एक एक इमाम चौक होती है जिसपे ये सुन्नियों के बनाए हुए ताजिए रखे जाते हैं. और वहां के ऊपर जो सादात फैमिली, शिया सादात फैमिली है, उनको इनवाइट किया जाता है कि वो आके मजलिस मातम. When these taziyas are taken out, the जंजीर का मातम, जो जिसमें नाइफ्स का इस्तेमाल करते हैं, वो किया जाता है मोस्टली बाय द हिंदूज एंड बाय द सुन्नीज. थर्डली, आज मैं पावर पॉइंट नहीं दिखा पा रहा, कभी मैं, अगर आप मेरा कोई इसके ऊपर एक आर्टिकल है कमेमोरेशन ऑफ मुहर्रम in these areas, उस पे आप कभी देखिएगा. The shape of the taziya is in the form of a typical rath,
जैसे जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ में जो रथ यात्रा निकलती है, जो उसका रथ होता है, जो एक प्लेटफॉर्म ऊपर से एक उसका जो शिखर, जो एक हट फॉर्म का आगे एक वो निकला हुआ साहिबान जिसके नीचे वो महारथी बैठेगा। तो ऑल बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप उसे देखेंगे उस ताजिया के शेप को, it is very different from the taziyas which are generally brought out in other places by the Muslims. It is a typical rath, shape of a rath, Hindu rath. And when it is taken out, the Hindu women of the Qasbah, they not only throw rice and wheat over it, but they also pass from below. ये एक वहां का कल्चर है जिसको करने के लिए ये जो हिंदू बच्चे, औरतें, मर्द कहीं भी नौकरी कर रहे हों, वो मुहर्रम के 10 दिन वो एक तरीके से मेला होता है पूरे उसमें कस्बे में। बाजे बज रहे होते हैं, मातमी बाजे जो कहलाते हैं, ताशा बजाने वाले होते हैं, वो अनाउंस करते रहते हैं रात रात भर, और उसमें शिया कोई शामिल नहीं। इट्स ऑल डन बाय द नॉन शियास, हिंदूज and the Sunnis. So one of the facts जो एक तरीके से वहां के ऊपर जो एक कल्चर जो उभर के आया है, जो मैंने आज आपके सामने पेश किया, ये इसकी तारीख है, ये इसकी इंपोर्ट है, और जिस कल्चर के लिए जाना जाता है वो एक टिपिकल शिया कल्चर है, लेकिन उसके अंदर जो कल्चरल ट्रेडिशंस घुसे हुए हैं, जिस अंदाज में वो कमेमोरेशन चल रहे हैं, वो सब अक्कासी करता है। यानी आपको स्नेही जी, मतलब मैं बताऊं कि जब मैं पहली बार मथुरा गया और एक कृष्ण टेम्पल में जब एक बाल कृष्ण का एक झूला निकाला जा रहा था और उसके साथ म्यूजिक और पूरा प्रोसेशन जा रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं अपने कस्बे में खड़े होके किसी मुहर्रम के जुलूस में हिस्सा ले रहा हूँ। दैट टाइप ऑफ कल्चर स्टिल इस दौर में भी मुझे याद है कि जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन जब जिस सन में हुआ था और हम लोगों को मुहर्रम के लिए जाना था, तो अलीगढ़ से तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पे है। आई वॉज ड्राइविंग माई वैगन आर थी मेरे पास उस पीरियड में, और पूरे 400 किलोमीटर पॉसिबली दी ओनली कार ऑन द रोड वॉज माइन, और चारों तरफ साधु और लोग जो थे वो नारे लगा के, और बाज़ दफ़ा एक आधा ऐसा मौका आया कि जब हम लोग के उसको रोका गया और जब हम देखा गया कि हम लोग काले कपड़े पहने बैठे हुए हैं, कहाँ जा रहे हो, कि भैया मुहर्रम करने जा रहे हैं। तो दे लेफ्ट अस एंड वी रीच द प्लेस, और उन हालात में भी उस गांव में, जो आज गांव है, जो कभी कस्बा था, मुगल कस्बा था, वहां पे मुहर्रम उसी अंदाज में सेलिब्रेट किया गया जैसे हमेशा होता था। पास कड़ा, जिसका मैंने नाम लिया, वहां पे राइट्स हुए, लोग मारे गए उसी पीरियड में। लेकिन जहां तक हस्वे का ताल्लुक था, वहाँ हिंदू, चाहे वो हाई कास्ट हिंदू हो, चाहे वो दलित्स हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, इन्होंने मुहर्रम का कमेमोरेशन, और उनका कहना था कि भैया ये तो हमारे यहाँ की रीत है, यही रवाज है, इसको तो हम करेंगे। तो ये एक कस्बा कल्चर जो अवध के इलाके का है, जाहिर है कि उसमें अवध कल्चर की एक निशानी है, लेकिन उस अवध कल्चर के साथ साथ एक हमारे अपने इंडियन कल्चर का भी एक अक्स है। और आई थिंक कि ये उस कल्चर को, उन चीज़ों को, उन कदरों को बहुत ज़रूरत है कि उसको डिटेल में हम समझें और उसको कंजर्व करें और प्रिजर्व करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच नदीम भाई, दिस वाज एक्सीलेंट। एंड जिस तरह से आपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ हसवा के जो हिस्ट्रीज हैं, उसकी लेयर्ड हिस्ट्रीज है, उसको हमारे सामने रखा, आई एम मेस्पराइज्ड, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और इसमें जो लेयर्स हैं, शायद वही लेयर्स जो है हमारी जो स्मॉल टाउन्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसी को बयान करती हैं, जो शायद जल्दी हम बड़े शहरों में खोते जा रहे हैं ना, बड़े शहरों के अंदाज में खोते जा रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए भी हमारा ये मकसद रहेगा कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो डाइवर्सिटी है छोटे शहरों की, उनके होने की, उनके बसने की और उनके बड़े होने की, हाँ, कभी कभी वो बड़े भी हो जाते हैं,
तो उसको हम लोग डील कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट नैरेटिव फॉर अस टू टेक इट अलोंग in our stride and journey for Abohar also. So thank you very much once again. अच्छा, कुछ सवालात कर लेते हैं जल्दी से, हमारे पास कुछ 15-20 मिनट हैं. So I will request the audience जिसमें हमारे fellows और कुछ scholars हैं, अगर वो सवाल पूछना चाहें तो प्लीज पूछिएगा. कल्चर के ऊपर एक इंटरेस्टिंग मेरे को वाकयात आ रहा है बीच में. इन द मीनवाइल यू पीपल कैन प्लीज, इफ यू वांट टू कैन रेज योर हैंड, टाइप इट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक इट फॉरवर्ड, द कन्वर्सेशन फॉरवर्ड. एक बड़ा इंटरेस्टिंग रेफरेंस आता है अबोहर के ऊपर, एक बस्ती का. मतलब अबोहर भी बिल्कुल उसी लिहाज से जिस तरह से आप हमारे सामने बयान कर रहे थे, एक एंशिएंट टाउन है, हड़प्पन टाउन है. तो हमारे पास कुशान पीरियड तक के भी हमारे पास रेफरेंसेस उसके अंदर मिलते हैं कुछ एक, बट प्रिडोमिनेंटली हड़प्पन फोर्ट के रूप में जाना जाता है. और जो उस हड़प्पन फोर्ट से प्रिडोमिनेंटली हमें बाद में मुगल एरा सल्तनत से लेकर लेटर मुगल एरा तक के कॉइन्स एंड कॉइनेजेस मिलते हैं, मुझे रेफरेंस और इंस्क्रिप्शनल डेटा मिलता है जो हमें उस इलाके के बारे में बताता है. बट डोमिनेंट जो हमारे पास रिकॉर्ड या नैरेटिव इस पीरियड के आते हैं, वो एक बस्ती के आते हैं जो राजपूत मुसलमानों की बस्ती थी, सुखरा बस्ती उसको कहते थे. और उनके राजपूतों की बस्ती के बारे में एक बड़ी मजेदार चीज बोली जाती है. सुन्नी बस्ती थी वो, और वो थी उनके लोकल जो वहाँ के जमींदार थे, बिश्नोई जमींदार, उनके साथ संबंधों की बड़ी मिसाल दी जाती है कभी कभी कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है. बिश्नोई हम जानते हैं प्रिडोमिनेंटली बिलोंग टू गुरु जम्बेश्वर एरा, है ना, उसकी जनरेशन से, और प्योर वेजिटेरियनिज्म जो फॉलो होता है इस पूरे रीजन के अंदर उसको फॉलो करते हैं. बट इंटरेस्टिंगली जो मिसाल आप लोगों को दिखती है इसके अंदर, जो पॉपुलर स्टोरीज के रूप में नरेट की जाती है, वो उनकी दोस्ती की है. और ये कहीं ना कहीं अगर हम कंटेम्प्रेरी लेंस के जरिए देखें तो एक कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में प्रेजेंट की जाने लगती है. और इंटरेस्टिंगली ये बात कही जाती है कि जब जो बिश्नोई, नाम भूल गया मैं उनका, शहर में आके बस जाया कर आते थे किसी शाम को, किसी शाम को शहर में आते थे, क्योंकि गांव से, तो गांव के जमींदार थे, सुखेरा भी जमींदार थे. तो जब शहर में आके बस आ जाते थे शाम को, तो कभी कभी लेट हो जाते थे, तो शाम को वो सुखेरा अपनी जो दोस्त है उनका घोड़ा लेके जो है गांव वापस आया करते. तो इस तरह के रेफरेंस आते हैं, और इंटर डाइनिंग के रेफरेंस आते हैं कि मिलके बैठ के खाया करते थे. जबकि अगर हम कन्वेंशनल सेंस में देखें, हिस्टोरियोग्राफिकल सेंस में ना देखते हुए, तो आप लोगों को कभी कभी इंटर डाइनिंग जो है एक टैबू के रूप में प्रेजेंट की जाती है, जबकि यहाँ इस केस में हम लोग को वो टैबूज नहीं दिख रहे हैं. तो स्मॉल टाउन में ऐसे कई सारी चीजें रिप्रेजेंटेशन में आती हैं, जो डोमिनेंट हमारी जो समझ है किसी भी शहर के बारे में, किसी भी कस्बे के बारे में, वो उससे बिल्कुल परे होती है, उससे बिल्कुल अलग होती है. तो वो जो अंदाज आप जिसमें बयान कर रहे थे, वही अंदाज मेरे दिमाग में आया, तो मुझे लगा इसके बारे में मुझे शेयर करना चाहिए. अच्छा, आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो प्लीज पूछिए, रेज योर हैंड्स, या आप माइक को अनम्यूट करके प्लीज पूछ सकते हैं. हाँ सुखवीर. हेलो सर. सर, जैसे आप बात कर रहे थे कि लोधी के टाइम पर कस्बे का जिक्र आता है, इसके बाद बाबरनामे में आता है, वो पहले मीनिंग की बात हो रही है. जैसे अलग अलग फिर अन्य अकबरी में आता है, इनमें जो इनका मीनिंग चेंज हो रहा है, क्या वही मीनिंग है इसका सर? जैसे मैंने आपको बताया कि कस्बा से मुराद, चाहे उसका रेफरेंस आ रहा हो या ना आ रहा हो, एक छोटे शहर से मुराद होती है. कस्बा वो शहर है कि जिसमें बहुत से एलिमेंट्स गांव के मौजूद हैं, जहाँ एक खासी तादाद है लोगों की जो उनका प्रोफेशन एग्रीकल्चर बेस्ड होता है. ज़्यादातर लोग वहाँ के जो शुरफा, जिनको आप कह लीजिए, वो जो होते हैं, वो एक तरीके से जमींदार क्लास यानी लैंड ओनर क्लास को बिलोंग करते हैं. लेकिन उसके साथ साथ ताजिर भी वहाँ होते हैं, खरीद फरोख्त भी हो रही होती है, बाजार भी होते हैं, मंडियाँ भी होती हैं. जैसे मैंने कहा कि कस्बा एक्चुअली अगर आप बहुत उसको डीकंस्ट्रक्ट करके देखें, इट्स अ क्रॉस बिटवीन अ सिटी एंड अ विलेज. एक अर्बन और रूरल का एक तरीके से मिली जुली एक एस्पेक्ट है.
नंबर 2, जैसे मैंने कहा कि कस्बे वो होते हैं कि जहाँ जो परमानेंट सीट्स ऑफ फैमिलीज हैं, जहां कोई ये फैमिलीज एक्चुअली बिलोंग करती हैं। शहर जो होते हैं, चाहे आज आप मेट्रोपॉलिटन शहर छोड़ दीजिए, छोटा सा शहर जैसे अलीगढ़ है वो भी ले लीजिए, यहाँ पे एक माइग्रेटरी पॉपुलेशन होती है। जाहिर है कि आमतौर से नॉन एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, दूसरे प्रोफेशन, वेरियस प्रोफेशंस के लोग होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो होती है जो एक्चुअली इस जगह से बिलोंग नहीं करती है, किसी न किसी अपने प्रोफेशन के एतबार से यहाँ आके बसी हुई होती है। तो इनके जो कल्चरल ट्रेट्स हैं, जो कल्चरल चीजें हैं, वो अलग अलग जगह से ड्रॉ की जाती हैं, और अल्टीमेटली जो शहर का एक कल्चर डेवलप होके आता है वो बहुत कॉस्मोपॉलिटन नेचर का होता है। अब मसलन अगर मुगल पीरियड में भी आप शाहजहानाबाद को ले लीजिए या लाहौर को ले लीजिए या आप किसी भी इस टाइप के शहर को ले लीजिए, वहां के ऊपर चारों तरफ से पॉपुलेशन माइग्रेट करके इकट्ठा होती है और अलग अलग कल्चर्स का मिला जुला रूप एक नया तैयार करती है। जबकि कस्बात वो होते हैं कि जहां से फैमिली और उनका कल्चर वहीं को बिलोंग करता है, वहीं से निकलता है और वहीं परवान चलता है। तो ये शायद मेरे लिहाज से, अब योगेश नहीं जो इस पे काम कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको बता पाएंगे, लेकिन सुखवीर जी, मैं जो समझा एक कस्बा और शहर के डिफरेंस को आफ्टर रीडिंग दी मुगल सोर्सेज एंड अदर सोर्सेज, वो यही एक फर्क मुझे सामने नजर आता है। और आमतौर से मैंने जो कस्बात देखे, जैसे जो तबकात अकबरी में 3200 कस्बों का जिक्र किया गया मसलन मुगल एम्पायर के अंडर में, तो हर उसको अगर आप उठा के देख लें, वहाँ के गैजेटियर्स उठा के देख लें, क्योंकि गैजेटियर ऐसी चीज है कि जहाँ पे आपको काफी डिटेल्ड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आमतौर से इन कस्बात में एक या दो से ज्यादा बाजार नहीं होते, एक छोटा सा एक बाजार, थोड़े से लोग, कल्चरल एस्पेक्ट ज्यादा। शहर तो अब अगर आप कोई भी बड़ा शहर, मतलब आप मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं बल्कि उस पीरियड के भी आप फतेहपुर सीकरी उठा के देख लीजिए, मसलन एक टेम्परेरी सा शहर बनाया था अकबर ने, लेकिन कम से कम 5 बाजार वहां मौजूद थे, मंडियां अलग, है ना। तो शायद सबसे बड़ा फर्क, और इसके अलावा क्या चेंजेस आते रहे, तो जाहिर है कि कल्चर या कोई चीज भी हमेशा एक तो रहती नहीं है, इवॉल्व करना तो एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो हमेशा हुई है, और अगर इस पे काम किया जाए कस्बात पे, तो शायद यहाँ के ऊपर भी काफी इवोल्यूशनरी आपको चीजें नजर आएंगी। Thank you very much, Nadeem. Any other question? Yes, please go ahead. सब मैं इसके बीच में एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर कोई सवाल किसी के पास फिलहाल नहीं है, ओके प्लीज गो अहेड। ओके, सुखवीर बोल रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक जहन में सवाल आ रहा था कि जैसे आप रेफरेंस आपके, जब आप हसवा की बात कर रहे थे, तो बड़े इंटरेस्टिंगली हसवा एक कस्बे से गांव में तब्दील होता है। तो क्या इस तरह के रेफरेंसेस भी आ रहे हैं जिसमें उस वक्त का कस्बा, वैसे तो काफी सारे होंगे, कुछ नहीं होंगे क्योंकि कस्बों की संख्या बहुत बड़ी है, पर ऐसे रेफरेंसेस जिसमें छोटे कस्बे बहुत बड़े शहर बन गए हों, जैसे अलीगढ़ शायद आप एक एग्जांपल के रूप में दे रहे थे, पर पता नहीं अलीगढ़ को क्या हम कस्बे, मिडीवल टाइम्स में क्या कस्बे के रूप में आइडेंटिफाई हो रहा है वो, तो कस्बा शहर बन रहा है, क्या वो ट्रांजिशन भी हमें दिखता है? I get your point. I think I mean there are a number of examples where small towns develop into big cities even during that period of time. Say for example, although I don't think it would be a good example to give, but Sikri was a village and ultimately turned into the imperial city and then was reduced to a town which was basically given to trade and commerce.
So it evolved. Right. In spite of the fact that under Jahangir or for that matter under Shahjahan, जब सीकरी का कोई और ऐसा रेफरेंस नहीं आता है, तब भी जिस वक्त शाहजहां वहां बताए जाते हैं कि जुमे की नमाज पढ़ने गए हुए थे, एक स्टैम्पीड मचता है और लोग उसमें उस भगदड़ में मर जाते हैं. सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन कितनी थी? रिमेंबर दैट अकबर के पीरियड में अगर दारुसल्तनत था तो जहांगीर के पीरियड में जो डच एंड फ्रेंच एंड इंग्लिश मर्चेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल पेल्सर्ट, वो फतेहपुर इंडिगो खरीदने आ जा रहे हैं. शाहजहां के पीरियड में जो कारपेट वीवर्स एंड कारपेट सेलर्स हैं, दे आर कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इनफैक्ट ये जो कहीं पे डेवलपमेंट और कहीं पे डिक्लाइन, ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल अगर आप खुद फतेहपुर जो मेन डिस्ट्रिक्ट है उसको आप देख लें तो कॉलोनियल पीरियड में इट वाज अ प्रीटी बिग सिटी. लेकिन जब से बॉम्बे का डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा शहर कानपुर जो इंडस्ट्रियल टाउन की तरह डेवलप हुआ, और इलाहाबाद दूसरी तरफ हुआ, और बीच में फतेहपुर. तो अगर आज आप डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर में जाएंगे जो कॉलोनियल पीरियड तक या मुगलों में काफी अहमियत रखता था, अब वहां जाएंगे तो वो जो आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका, जिन्होंने मंडल कमीशन लाए, राजा अरे क्या कहलाते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, मंडल कमीशन वाले, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी था फतेहपुर, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, लेकिन खंडरों का शहर. डिस्ट्रिक्ट बहरहाल वो आज भी है, लेकिन उसमें सिवाय खंडरात के पुराने रिमेन्स के कोई डेवलपमेंट, क्योंकि पॉपुलेशन जो वहाँ की जो हमारे फतेहपुर की जो पॉपुलेशन है, जब वो पढ़ लिख जाती, पढ़ने के लिए लखनऊ चली जाती है, अलीगढ़ आ जाती है, और जॉब करने के लिए कोई इलाहाबाद चला जाता है, कोई कानपुर चला जाता है, कोई बॉम्बे चला जाता है. फतेहपुर में वही कुछ बुढ़े लोग बच जाते हैं जिनका कोई काम काज नहीं. तो इस टाइप से शहरों का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू वेरियस रीजंस, say for example decline of Fathepur due to the industrialization, पास के जगह पे इतने डेवलप हो गए कि अब यहाँ पे कुछ रिसोर्स ही ना बचे. तो इस टाइप से डेवलपमेंट, या फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपका ये फिरोजाबाद है ना, जो आगरा और इसके बीच में जो मौजूद है, जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्री डेवलप करती गई, फिरोजाबाद बनना बहुत ही, खुर्जा फॉर दैट मैटर, till the colonial period it had no importance. Suddenly वो पॉटरी का वहाँ डेवलपमेंट होता है, आज अच्छी खासी एक आबादी वहाँ नजर आ रही है. तो ये उतार चढ़ाव आपके इकोनॉमिक रीजंस की वजह से वहाँ हर जगह अलग अलग वो आते रहते हैं. अनफॉर्चुनेटली हसवा एक कस्बा था जो अब क्योंकि उस ट्रेड रूट पे नहीं है, वो ट्रेड रूट वहाँ से दूर चला गया, यहाँ के रिसोर्सेज एकदम से ड्राई हो गए. 1857 के बाद जो यहाँ के जो एलीट क्लास थी उनको ऐसा दबाया गया, कोई इंतहा नहीं. फिर माइग्रेशन हुआ, अल्टीमेटली आज सरवाइव तो कर रहा है लेकिन विलेज के फॉर्म में कर रहा है. तो ये अलग अलग वजूहात होती हैं, अलग अलग रीजंस होते हैं, और दोनों तरीके के डेवलपमेंट हमको देखने को मिलते हैं. लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कस्बात की स्टडी हो और देखा जाए कितने कस्बे ऐसे हैं कि जो अपने उस कल्चरल स्ट्रेंथ पे उभर के सामने आ गए. मैं बार बार आपसे बिलग्राम का जिक्र करूंगा, बहुत छोटी सी जगह थी, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जहाँ तक मुस्लिम कल्चर का सवाल है, बिलग्राम बहुत बड़ा नाम उभर के आता है. लेकिन क्या एज अ शहर भी वो उतना डेवलप कर पाया कि नहीं कर पाया, दैट इज एक मुद्दा है डिस्प्यूट का. राइट, थैंक यू. माइग्रेशन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, और अबोहर के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इन पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बड़ी कॉन्टिन्यूअस पैटर्न है. तो एक चीज जो देखने को मिलती है कि एक वक्त में आपको एक बहुत बड़ी माइग्रेशन राजस्थान से होती हुई यहाँ आती हुई दिख रही है. हाँ, तो वन स्टेज ऑफ माइग्रेशन अगर हम कहें तो जिसको आज हम साउथ हरियाणा कहते हैं और नॉर्थ राजस्थान कहते हैं, उन इलाकों से माइग्रेशन होकर यहाँ पर आकर लोग बस रहे हैं. दूसरी माइग्रेशन ऑब्वियसली बड़ी माइग्रेशन जो पार्टीशन के दौरान हो रही है, जिसमें
जो नॉन मुस्लिम माइग्रेशन है यहाँ से हो रही है, और जो मुस्लिम माइग्रेशन है पाकिस्तान की हो रही है। बट मोर रिसेंट माइग्रेशन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंगली फ्रॉम रूरल टू अर्बन है। एग्जैक्टली। हाँ, जिसमें कि जो गांव के बड़े जमींदार है वो शहरों में, छोटे कस्बों में अपने घर बना रहे हैं, और आज शायद ही ऐसा कोई बड़ा जमींदार होगा गांव का जिसका आज अबोहर में घर ना हो। पर जो शहरों के रहने वाले एलिट्स थे वो एक्चुअली शहर छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। सो एक इंटरेस्टिंग जो चेंज आपको माइग्रेटरी पैटर्न से देखने को मिलता है, और वो भी मैं आपको सिर्फ लगभग 150-200 साल के पीरियड के अंदर बता रहा हूँ, जो इस पैटर्न आपको इमर्ज करता हुआ दिखता है, जो वही उस तरह से जैसे आप बयान कर रहे थे कि एक माइग्रेशंस जो हैं पर्टिकुलर, और उसके इंटरसेक्शन जो ट्रेड और अदर रिलेशनशिप के हैं, वो शायद एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब जैसे मेरे दिमाग में जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे थे हसवा का जीटी रोड पे होना और फिर जीटी रोड से दूर जाना, मतलब ट्रेड रूट से दूर जाना, तो मेरे दिमाग में वंस अगेन अबोहर जो था वो एक सल्तनत ट्रेड रूट पे था, है ना, पाकपट्टन मुल्तान से जुड़ता हुआ सीधे दिल्ली को जुड़ता था। पर मुगल एरा में वो बिल्कुल परे हो जाता है, तो वो एक फ्रंटियर हिंटरलैंड बन के रह जाता है। और पोस्ट पार्टीशन वो तो पूरा का पूरा ही इलाका कट जाता है, क्योंकि फ्रंटियर बिल्कुल पाकिस्तान के बगल में लगता हुआ एक इम्पोर्टेंट शहर रह जाता है। तो इंटरेस्टिंगली ट्रेड के साथ उसका रिलेशनशिप जैसे आप बयान कर रहे थे, वो शायद अबोहर के कॉन्टेक्स्ट में भी उस तरह से देखने को मिलता है। तो शायद देयर आर पैटर्न जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कस्बों के चेंजिंग फॉर्च्यून्स के बारे में। तो मेरे दिमाग में रिफ्लेक्शंस के तौर पर आए तो मैं आपसे बयान करता। अच्छा, कोई और सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं फेलोज लोग? एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ योगेश। यस प्लीज गो अहेड। या नदीम जी, धन्यवाद इस टॉक के लिए। मैं वही इसी बात को सोच रही थी जो हम एक डीअर्बनाइजेशन की डिबेट को लेकर जाते हैं, स्पेशली कॉलोनियल पीरियड में, कि कुछ कस्बे किस तरह से बढ़े और कुछ नए कस्बे आए, और बाद में काफी जो पहले आर्टिजन्स थे वो डिक्लाइन हुए, इस वजह से बहुत सारी, तो वो सिटीज के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने मोस्टली वो डिबेट ली है डीअर्बनाइजेशन की। तो ऐसा क्या है कि जिस कस्बे की आप बात कर रहे हैं कि आर्थिक अर्थव्यवस्था हिलने की वजह से ऑफ कोर्स वो एक डीअर्बनाइज्ड टाउन से वापस विलेज की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा क्या है कि वो जो रिलीजन और कल्चर है, वो जो धर्म और संस्कृति की जो सिंक्रेटिसिज्म है जो आपने बताया दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, वो क्यों रेजिलिएंट रहता है, और इनफैक्ट आज के दौर में उसी से आप उस कस्बे की पहचान को भी बनाकर। तो एक तरफ हम देखते हैं इकोनॉमिक डिक्लाइन है, लेकिन जो आप रिलीजन कल्चर, जैसे आपने बिलग्राम की भी बात कही, वो क्या है जो रेजिलिएंट रहता है और उसी की पहचान बन जाता है उसका? नहीं, बिल्कुल डॉक्टर बेहरा, इट्स a very important question which you are posing. I mean, you rightly pointed out that if you look at this place, Haswa, there is a demographic decline, there is an economic decline, a decline on every front except possibly on the front of the culture. I mean, as far as, I have not worked on this theme at all. I offered myself as a sacrificial goat to Yogesh ji. I have been working on the Mughals, but the only connection which I have with Haswa was the fact that I belong to a family which relates with that. My father was known as Fazile Hansui, the scholar of Haswa. So that is my only connection with this place. But yes, this is a question which has interested me since a long period of time. Why this resilience in culture at a time when other aspects are declining? Possibly, जो मैं समझ पाया, हो सकता है कि क्योंकि मैंने उसको कभी इन डेप्थ देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन शायद जो एक वहाँ के रहने वालों की जो अपनी उनसियत होती है उस जगह से, वो एक जो फीलिंग ऑफ अपना कल्चर जो शायद एक पर्टिकुलर जगह से उनकी होती है। जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग, जैसे मैंने पॉइंट आउट किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मेरे खानदान के हो, मेरे खानदान के अलावा हो,
वो सब के सब मुहर्रम आते ही उनके जहन में है कि वो हमारा एक बहुत बड़ा एक कल्चरल वो है, और वो भाग के वहां के ऊपर शामिल होने के लिए आते हैं। उनको लगता है कि दे वुड बी मिसिंग समथिंग, पॉसिबली एक एस्पिरेशन ऑफ अ वतन which makes them come back, a feeling कि everything else is lost, चलो हम इस अपनी जो एक कल्चरल धरोहर है इसको बचा के रखें। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक हालात देखें, या मतलब मैं अभी कुछ दिन पहले योगेश जी के इनविटेशन के बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट्स उठा के देख रहा था कि जो मेरे पर्टिकुलर अपने इमीडिएट खानदान की जितनी जमीनें, जो जमींदारियां जो थी, वो कैसे कैसे डिक्लाइन करके आज वो नौबत आ गई है कि मेरे पास सिर्फ हसवे में एक घर है, एक जमीन का टुकड़ा नहीं है मेरे पास। मतलब खेती के नाम पे अगर आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन बहुत दूसरी चीज ये कि अगर मुझे अगर प्रोफेसर नदीम रजावी को अगर लोग जानते हैं तो वो ये जानते हैं कि ये लेफ्ट ओरिएंटेड एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के को फॉलो करने वाले एक मिडिवल के स्कॉलर हैं। लेकिन आप अगर मुझे मुहर्रम के 10 दिन अपने गांव में देखेंगी तो शायद आप जो मेरा सो कॉल्ड मार्क्सिज्म है वो आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं वहां जाके मैं नहीं कहता कि मैं इस्लाम मजहब को मानता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत पक्का शिया हूँ, मैं दोनों में से कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं कल्चरल शिया जरूर हूँ, क्योंकि वहां जाके जितने भी वो रीत रवाज हैं उन्हीं कपड़ों को पहनूंगा। जब मेरे बुजुर्ग मेरे हाथ में नाड़ा बांधेंगे तो मैं बंधवाऊंगा, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। और 11वें दिन जिस वक्त मैं वापस आऊंगा फिर मैं बिल्कुल अलग टाइप का हूँगा। इसके पीछे क्या रीजन है, अब ये तो मतलब मुझ जैसा आदमी तो नहीं बता सकता, क्योंकि आई हैव नेवर एक्चुअली वर्कड ऑन दिस एस्पेक्ट। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये जो तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन दिस सो कॉल्ड रिलीजियो कल्चरल affinity to something that has to be worked upon, or I think it is an important aspect to be understood। जहां तक मेरा सवाल है मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद उसका शिकार हूं इस तजाद। नहीं, आपने बिल्कुल जवाब दे दिया नदीम साहब, क्योंकि जो हम स्मॉल टाउन्स की बात करते हैं हम उसको एक कल्चर से ही, हम इसलिए एक वर्ड यूज करते हैं स्मॉल टाउन कल्चर्स, क्योंकि आई थिंक वो जो आपने शुरू में भी जब स्टार्टिंग करी थी तब आपने वतन बोला था। एक ये बहुत वतन को हम बहुत तरीकों से समझते हैं कि किसका वतन क्या है, तो वो जो एक अटैचमेंट होता है एक वेयर यू आर बोर्न, और वो जो कल्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और आई थिंक वही स्मॉल टाउन कल्चर्स में भी आप कहीं भी चले जाए, शहरीकरण भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कहते हैं ना आप अपना वतन साथ लेके अपना स्मॉल टाउन साउथ लेके चलते हैं। तो आई थिंक यू ऑब्वियसली आंसर्ड इट, थैंक यू वेरी मच। नहीं, ये एक बहुत अच्छे खूबसूरत नोट पे आज हम इस टॉक को एंड करते हैं। तो और वो कल्चरल जो डायमेंशन है छोटे शहरों की, और शायद यही कंट्रीब्यूशन इस प्रोजेक्ट का भी हम चाहेंगे कि आगे लेके जाएं, कि ये जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं, कल्चरल रेफरेंस पॉइंट्स हैं, वो किस तरह से एक इमोशन को इन्वोक करते हैं, वो किस तरह से एक पास्ट को इन्वोक करते हैं, जो डोमिनेंट समझ है शहरों की, चाहे वो इकोनॉमिक समझ हो, चाहे वो पॉलिटिकल समझ हो, उससे बिल्कुल परे होते हुए उसको इन्वोक करती हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत डायमेंशन है जो हम लोग को देखने को मिलता है। इनफैक्ट कल ही एक फेलो हम लोगों से शेयर कर रहे थे कि एक डॉक्टर साहब होते थे जो 4 नंबर गली में रहते थे, वहाँ गलियाँ हैं जो पुराने शहर के अंदर, तो वो बहुत बार इस बात को रिग्रेट करते हैं कि मैं गली छोड़ के नए मोहल्ले में क्यों गया। और उनका रिग्रेट करने का एक सिग्निफिकेंट पॉइंट ये होता था कि जिस तरह से गली के अंदर कल्चरल एसोसिएशंस होती थी पुराने शहर के अंदर, जिसमें गली के पार, गली के पीछे छत और दीवार जो सिर्फ नोशनल रूप से एग्जिस्ट करती थी, वो छत दीवार जो है बड़े सिग्निफिकेंटली जो है नए इलाके जो कॉलोनियां बन गई हैं वहां पे एग्जिस्ट करती है, तो वो उसको मिस करते हैं। तो जो डायमेंशन कल्चर की है जिसमें दीवार सांझी है, वो बिल्कुल एक रेफरेंस पॉइंट में कहते हैं कि हमारे यहाँ पुराने शहर में दीवारें सबकी सांझी होती थी, नए शहर में
दीवारें सबकी अपनी अपनी होती हैं, हाँ, तो बाउंड्री दीवारें भी अपनी अपनी होती हैं। तो आई थिंक वो जो स्ट्रीक ऑफ कल्चरल रेफरेंस है, कल्चरल स्टैंड पॉइंट है, वो शायद उन कल्चरल जो मार्कर्स है उनसे। जी जी जी। मैं एक चीज बस आखिर में ऐड करना चाहूँगा कि मेरे फादर, जैसे मैंने कहा कि वो टाइटल था उनका, अगर शीयों में कहीं जाके अगर आप उनके बारे में पूछेंगे, चाहे ईरान, इराक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फाजिल अहमद भी कहिएगा तो लोग उनको पहचान जाएंगे कौन थे, वो उस नाम से एसोसिएटेड थे, मौलाना थे। लेकिन रामायण और महाभारत उनको ज़बानी याद थी। उनकी जो मदर थी यानी मेरी दादी, वो भी बहुत मजहबी थी और जाहिर है कि पूरा हमारे यहाँ का कल्चर जो मुहर्रम का कल्चर है उन पे बेस करता था। लेकिन ठुमरी बहुत अच्छी वो उसकी एक्सपर्ट थी। तो ये जो चीज़ें थीं जहाँ हम अपनी एक आइडेंटिटी नहीं बना के चलते थे, जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी वतन के साथ साथ, जिस वतन का हमने आज जिक्र किया उसके साथ साथ एक हिंदुस्तानी की भी होती। आज कहीं संभाव शायद क्योंकि हम अपने जमीन से जुड़े होते थे, उस वतन से जुड़े होते थे, तो उसके साथ साथ जो एक लार्जर वतन का कंसेप्ट हिंदुस्तान का, कि जहाँ के ऊपर महाभारत और रामायण और मुहर्रम, फलां दिन का सब एक साथ लेके चलने वाला जो हुआ करता था, वो कहीं आज खो सा गया है। और आई थिंक बहुत ज़रूरत है इस मॉडर्न एज में, अगर इस हिंदुस्तान को सरवाइव करना है तो उस कल्चर को, उस पहचान को हमें दोबारा से रिवाइव करने की। दैट इज व्हाट I'd like to say. Thank you very much, Professor Nadeem. It was great listening to you, and I think we had a vibrant discussion. फिर जब कभी जरूरत पड़ेगी और हम चाहेंगे कि कभी आप अबोहर की तरफ आएं, तो प्रोजेक्ट की तरफ से आपके लिए खुला निमंत्रण है। आप कभी भी आएंगे, आपको हम होस्ट करेंगे। और जो एक्टिविटीज हमारे यहाँ चल रही हैं, हम 6 लगभग एग्जीबिशंस को मोहल्लों में बना रहे हैं, और वो लगभग हर एक महीने तक वो एग्जीबिशंस जो हैं जिंदा रहेंगी। तो कभी आएं और हमारे को हौसला दें, आप आएं तो हम लोग खुश होंगे कि आपको होस्ट कर पाएं। सो ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई विश वी विल गेट अनदर चांस टू कॉल यू वंस अगेन। सो थैंक यू वेरी मच।